डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले ही हेलोजन फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स और सर्टेन प्रॉपर्टीज़ की ट्रेंड्स। उसके बाद 2-3 लेक्चर इसमें रहते हैं। उसके बाद हमें क्लोरीन डिस्कस करना है, HCl का मैन्युफैक्चर डिस्कस करना है, देन ऑक्सो एसिड्स और इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेटस। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ तक? जो हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स है, हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ हेलोजन फैमिली। इनमें से जो फ्लोरीन है या इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 तो +7 होती है। -1 से +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आउट ऑफ देम फ्लोरीन ओनली फॉर्म्स कंपाउंड्स इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन ओनली फॉर्म्स कंपाउंड्स इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब रीज़न क्या है फ्लोरीन क्यों -1 में बनाता है? और जो बाकी एलिमेंट्स है दे फॉर्म कंपाउंड्स इन +1, +3, +5 and +7 oxidation states. The other elements, that's chlorine, bromine and iodine, they form compounds in +1, +3, +5 and +7, but fluorine only forms compounds in -1 oxidation state. Now what is the reason that fluorine only forms compounds in -1 oxidation state? There are two things that need to be understood over here. Number first thing is electronegativity. Fluorine has highest electronegativity in the periodic table, highest electronegativity. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है इन द पीरियोडिक टेबल। इसलिए अगर ये किसी एलिमेंट से बॉन्ड बनाएगा, इट विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट एलिमेंट। टेकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट, दैट विल result in the -1 oxidation state because of its higher electronegativity. और नंबर सेकंड जो फैक्टर है, दैट इज absence of vacant d orbital, absence of vacant d orbital। क्यों? फ्लोरीन में जो भी पहला मेंबर होता है इन ग्रुप्स में, ग्रुप 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, इन सब में एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, दैट इज ns2 np5। और हमें पता है 2 में कोई d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, there is no d orbital present, इसलिए it cannot expand its octet। That's why it cannot show oxidation status other than -1। It would have shown oxidation states other than -1 if it gives electrons to other elements, but because of its higher electronegativity it is not able to donate electrons, it only accepts one electron। That's why it shows compounds in -1 oxidation state। So let us discuss the oxidation states of other elements. Other elements form compounds in +1, +3, +5, +7। Let us discuss them with respect to chlorine। So we know that chlorine की configuration जो है, that is 3s2 3p5। This is the valence shell electronic configuration of chlorine। So we have 3s, in 3s orbital we have 2 electrons, and we have 3p. In 3p orbital we have how many electrons? We have 5 electrons, and we have a 3d subshell which is vacant subshell over here। 3d orbitals are vacant over here in case of chlorine, bromine and iodine। अब मैंने आपको क्या कहा है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने बॉन्ड बनते हैं। now there is only one unpaired electron, therefore that's why chlorine can form compound by losing this electron or by sharing this electron। Since only one unpaired electron, therefore compound in this case will be +1। compound in this oxidation state will be +1। now if we see, if now what we can do, we can promote this electron from this 2p or 3p orbital to 3d orbital। We can promote this electron. If we promote this electron, then what happens? We have 2 electrons over here, and we have promoted 1 electron. We have 2 electrons over here, 1 over here, and 1 electron in 3d subshell। now how many unpaired electrons are there? Now there are 3 unpaired electrons। 3 unpaired electrons means it can show compound, it can form compounds in +3 oxidation state। now similarly we can promote one more electron। if we promote this electron, we get one more configuration, that is here we have now 3 unpaired electrons, and here we are having 2 unpaired electrons because I have promoted this electron as well। इस electron को भी हमने promote किया है।
पहले हमने इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया, उसके बाद अब इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया। ना यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5। therefore compound can be formed in +5 oxidation state as well. Similarly we can promote this electron as well, हम इस इलेक्ट्रॉन को भी प्रमोट कर सकते हैं। then this is our 3s 1 unpaired electron, 3p 3 unpaired electrons, and we have 3d having 3 unpaired electrons. Total number of unpaired electrons now is 1, 3 plus 1 4, 4 plus 3 7. Therefore they can form compounds in +1 +3 and +5 and +7 oxidation status. This is how they form compounds in +1 +3 +5 and +7 oxidation status. That's why we can see a large number of compounds of chlorine, bromine, iodine, but we can't see large number of compounds of fluorine. Fluorine forms only few compounds, but compounds of these chlorine, bromine, iodine, they are very much known to us. For example, oxides, we'll discuss them little later. The compounds, what are these compounds? But this is the way how they change their oxidation states from +1 to +7. Now let us discuss number second property, that is oxidizing power. बहुत ही important है oxidizing power. Let us discuss oxidizing property. Let us discuss one more important property, that's oxidizing power. Oxidizing power. Oxidizing power. Now अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होगा, किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडाइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन SRP. It depends upon SRP. Now what is SRP? Standard reduction potential. Standard reduction potential. किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड करता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे. स्टैंडर्ड reduction potential. The oxidizing power of any substance depends upon standard reduction potential. How can we know this standard reduction potential? We have discussed it in electrochemistry. Now what is oxidizing power? Tendency to oxidize substance. It is tendency to oxidize other substance and or we can say tendency. It is the tendency of a substance to get reduced. खुद वो reduce हो जाता है और दूसरे substance को oxidize करता है. That's oxidizing power. तो अगर हमें पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हमने क्या पढ़ा है? जिस भी सबस्टेंस का SRP ज़्यादा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उस सबस्टेंस का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होता है. उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होता है और वो सबस्टेंस खुद जल्दी रिड्यूस हो जाता है. जिस भी सबस्टेंस का SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वो सबस्टेंस दैट एक्ट्स एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होता है, खुद वो सबस्टेंस जल्दी रिड्यूस होता है. तो हेलोजनस जो हमारे पास है, इनका SRP लाइज इन द ऑर्डर. फ्लोरीन का SRP ज़्यादा होता है देन क्लोरीन, which is more than bromine, which is more than iodine. This is SRP order, standard reduction potential order, SRP order. अगर फ्लोरीन का SRP ज़्यादा है, therefore fluorine will have more oxidizing power or will act as good oxidizing agent compared to chlorine. Chlorine, bromine, iodine. This is oxidizing power. This is oxidizing power. दिस इज ऑक्सीडाइजिंग पावर. तो यहाँ से क्या हमें मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है? फ्लोरीन जो होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होता है कंपेयर टू क्लोरीन, कंपेयर टू ब्रोमीन, कंपेयर टू आयोडीन. तो अगर हमें कहीं पे ऑक्सीडेशन करनी है, फ्लोरीन विल बी ए गुड चॉइस एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. मीन्स फ्लोरीन हमारा ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर, ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स. दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर. तो दिस ऑक्सीडाइजिंग पावर इज श्योरली बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने ये पढ़ा था, एलिमेंट्स विच लाई बिलो द सीरीज, अगर हम इनको रिडक्शन पोटेंशियल
एलिमेंट्स विच लाई बिलो द सीरीज उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड देमसेल्व्स और अदर सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं. सिमिलरली जो एलिमेंट्स एट द टॉप होते हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, लाइक लिथियम, लाइक सोडियम. दैट्स वाई इन सब्सटेंस की खुद ऑक्सीडेशन होती है और दूसरे सब्सटेंसेस को ये रिड्यूस करते हैं. दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड दीज सब्सटेंसेस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. Halogens lie at the bottommost of the series. That's why these are good oxidizing agents. तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आई, reduction potential of fluorine is more compared to reduction potential of chlorine, compared to reduction potential of bromine, compared to reduction potential of iodine. मीन्स यहाँ से ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, अगर हमारे पास फ्लोरीन भी होगा और फॉर एग्जांपल कोई और हेलोजन होगा, क्लोरीन होगा और ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा, तो इनको अगर ऑक्सीडाइज करना है वी कैन यूज़ फ्लोरीन. मतलब जो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप मोस्ट एलिमेंट जो इसके नीचे वाले एलिमेंट्स हैं हैलोजन फैमिली में उनको ऑक्सीडाइज करेगा. फॉर एग्जांपल फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, it can oxidize bromine, it can oxidize iodine. Chlorine cannot oxidize fluorine, chlorine can oxidize bromine and iodine, and bromine can only oxidize iodine. मीन्स जो टॉप पे एलिमेंट होगा वो नीचे वाले एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेगा, बिकॉज फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, क्लोरीन का इन दो से ज़्यादा है, ब्रोमीन का इससे ज़्यादा है. तो अगर हम फ्लोरीन को इनके साथ ट्रीट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम फ्लोरीन को F2 को, दिस इज़ फ्लोरीन, एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल Br माइनस के साथ ट्रीट करेंगे, Br माइनस मीन्स Br इज इन दिस ऑक्सीडेशन स्टेट. लेट अस सी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस फ्लोरीन, इट इज 0. लेट अस चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br माइनस, इट्स -1, और हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1. तो मैंने क्या कहा, दिस फ्लोरीन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये इस Br को ऑक्सीडाइज करेगा, इस Br को ये ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा. खुद रिड्यूस होगा मतलब Br को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब Br की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा. अब -1 से कहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, 0 + 1. सो वी विल गेट Br2 ओवर हियर प्लस वी गेट F नेगेटिव ओवर हियर. खुद फ्लोरीन का रिडक्शन हो गया और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो गया, मीन्स फ्लोरीन ने ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज किया और खुद रिड्यूस हो गया. यहाँ से यह इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं कि जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है. क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को, ब्रोमीन ओनली आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है. मीन्स अगर हम इसको 2 टाइम्स लेंगे देन व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम निकालते हैं, यू कैन सी इट इज 0 ओवर हियर एंड इट इज 2x is equal to -1. 2x means let x be the oxidation state of fluorine. X is equal to -1 by 2. So there is decrease in the oxidation state of fluorine from F2 to F negative, and there is increase in the oxidation state from -1/2 to 0. इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स ऑक्सीडेशन, खुद फ्लोरीन का रिडक्शन होता है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है. ये मतलब मेरे कहने का मतलब यही है. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, if question will be asked in the competitive exam like this, which of the following cannot be oxidized by bromine या by chlorine. क्लोरीन से किसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है? नंबर फर्स्ट फ्लोरीन, नंबर सेकंड ब्रोमीन, नंबर थर्ड आयोडीन, नंबर फोर्थ ऑल ऑफ एबो. तो किसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी? जो क्लोरीन से ऊपर होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन से ज़्यादा होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन से ज़्यादा होगा, दैट इज फ्लोरीन. So this is how a question can be asked in examination. Because of this standard reduction potential, they can also react with water. They can form different compounds. They can react with water. For example, fluorine, it can react with water.
it can react with water, और here we can get F negative ions. क्यों? एक्वस सोल्यूशन में अगर हम फ्लोरीन को डालेंगे तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. It will take H positive ion, means we have F negative. We treat it with water. It will take H positive ion from water. It will form HF in the form of that compound will be ionic and they will exist in the form of ions. Means we will have H positive and F negative ions in the solution, because fluorine being smaller in size, will form highly ionic compound. That's why we will have H plus and F negative ions. So in this case we will get H plus and F negative ions. We get H plus 4 times H plus 4 times F negative ions, और हमें यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा. कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट इज O2. वी विल गेट O2 ओवर हियर, और यहाँ से O2 मिलेगा. सो हमने क्या देखा? बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इट रिएक्ट्स विद द वाटर, इट फॉर्म्स ions such as H plus, F minus and O2. तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो हमारा ये कंपाउंड है वाटर में हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, मीन्स फ्लोरीन इसका ऑक्सीडेशन करना चाहिए, यहाँ से ऑक्सीडेशन होनी चाहिए. तो ऑक्सीडेशन होती है या नहीं होती है हमें ये चेक करना है. अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ निकालेंगे, लेट एक्स बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, बट वी हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स, दैट इज 2x. एंड हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मीन्स इट्स +1. but we have 4 hydrogen atoms. 4 into +1 is equal to 0. 2x is equal to 4 1s are 4, that's -4. x is equal to -4 by 2, x is equal to -2. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 और यहाँ पे 0 है. माइनस से हम जब भी हम 0 जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, मीन्स यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन होता है बट फ्लोरीन का रिडक्शन होता है. फ्लोरीन का यहाँ पे 0 है और यहाँ पे फ्लोरीन का कितना है? 4x इज इक्वल टू -1. यहाँ पे फ्लोरीन का माइनस में जाता है, दैट्स रिडक्शन. खुद रिडक्शन होता है और दूसरे सब्सटेंस को वाटर जो इसके साथ ट्रीट की उसका ऑक्सीडेशन होता है. यू कैन सी ऑक्सीडेशन जस्ट बाय दिस. यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है इसलिए ऑक्सीडेशन होती है वाटर की. वाटर से ऑक्सीजन रिलीज होता है इसलिए भी वाटर का ऑक्सीडेशन होता है. दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन. अदर हेलोजन्स जो हमारे पास है, क्लोरीन, जो हमारे पास ब्रोमीन है, दे आल्सो रिएक्ट विद वाटर, बट ये उतना मतलब उतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है. दे फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ द टाइप HOCl, HOBr मीन्स HOX. दे फॉर्म कंपाउंड्स लाइक दिस HOX, HOBr. दे फॉर्म दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स. इफ वी टेक दिस एज 2 टाइम्स, दिस एज 2 टाइम्स, तो यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगा. यहाँ से हमारा ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा. दिस इज HOCl एंड HOBr. लेट अस बैलेंस दिस 2 टाइम्स. 2 हाइड्रोजन, we have 2 oxygens over here. In this case we have 2 oxygens over here. Let me see the balanced reaction. We get HX plus we get HX over here plus we get HX over here, means HCl. Here we get HBr. Now the reaction is balanced. These are the oxidizing reactions, how fluorine brings about oxidation. तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरह बढ़ते हैं. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ हेलोजन्स विद हाइड्रोजन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नंबर 3rd प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन. इंपॉर्टेंट है. रिएक्शन विद हाइड्रोजन. These halogens, they react with hydrogen, they form compounds of the type HX. HX means hydrogen halides. They form hydrogen halides. For example, fluorine will form HF, chlorine will form HCl, bromine will form HBr, iodine will form HI. ये जो 4 कंपाउंड्स यहाँ पे बने, इनमें से 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. नंबर फर्स्ट, एसिडिक नेचर. इनका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? नंबर सेकंड, इनकी जो बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर. नंबर थर्ड, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर. These are the 3 types of questions that are asked from this: thermal,
थर्मल स्टेबिलिटी कार्ड, थर्मल स्टेबिलिटी कार्ड। तो इन तीनों को डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे एसिडिक नेचर को ना। एसिडिक नेचर को डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना है, HF, HCl, HBr को लेना है। ये हमारे पास हाइड्रोजन है एंड दिस इज फ्लोरीन। हमें पता है फ्लोरीन में कौन से ऑर्बिटल्स, लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल पे होते हैं, 2p ऑर्बिटल पे। लेकिन क्लोरीन में यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल इज बिगर ऑर्बिटल। And bromine में these lone pair of electrons they are present in 4p orbital and iodine they are present in 5p orbital। तो यहाँ पे क्या होता है, 2p ऑर्बिटल का साइज स्मॉल होता है और हाइड्रोजन में किस पे इलेक्ट्रॉन्स है, 1s ऑर्बिटल पे। 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल का साइज स्मॉल होता है, इसलिए इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की एक और कंडीशन, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मीन्स यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड मीन्स इट विल बी मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 3p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है कंपेयर टू 2p ऑर्बिटल। सो यहाँ जो इंट्रैक्शन होगी दैट विल बी लेस इंट्रैक्शन कंपेयर टू ओवर हियर। मीन्स ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा कंपेयर टू दिस बॉन्ड। हम ये कहेंगे जो बॉन्ड लेंथ है इन हाइड्रोजन हैलाइड्स में, मीन्स HF, HCl, HBr, HI, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। और हमें पता है अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो ये वाला बॉन्ड वीक होगा। अगर ये वाला बॉन्ड वीक होगा इट कैन इजीली डेसोसिएट। अगर ये बॉन्ड इजीली डेसोसिएट होगा तो यहाँ पे क्या है, हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन। दिस बॉन्ड कैन डेसोसिएट टुवर्ड्स हेलोजन, दिस बॉन्ड कैन डेसोसिएट टुवर्ड्स दिस साइड, इट कैन डेसोसिएट टुवर्ड्स दिस साइड, दिस विल डेसोसिएट टुवर्ड्स दिस साइड। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, F नेगेटिव आयन, Cl माइनस आयन, Br माइनस आयन, I माइनस आयन। ये सब कहाँ होगा, इन एक्वस सोल्यूशन, मीन जब हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। अगर वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, लोन पेयर ऑफ वाटर विल टेक दिस प्रोटॉन, वी गेट H3O प्लस इन ऑल द केसेस। H3O प्लस वाटर H पॉजिटिव एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ H3O प्लस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दिस बॉन्ड इज वीक, तो यहाँ पे डेसोसिएशन ऑफ H पॉजिटिव जल्दी होगी। According to Bronsted-Lowry concept, a species which gives proton in aqueous solution, which donates proton, जो प्रोटॉन डोनेट करता है, जो जितना जल्दी प्रोटॉन डोनेट करेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। बिकॉज स्पेशी विच गिव्स H पॉजिटिव आयन इज एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे कौन सा आप जल्दी H पॉजिटिव आयन देगा, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है इसलिए क्या होगा, इट विल इजीली डोनेट H पॉजिटिव आयन। Therefore, HI will be more acidic than HBr, then HCl, then HF. This will be the acidic order. अब ये acidic order क्यों है? Because an acid is a species which gives H plus ion. H plus ion कहाँ से मिलेगा, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ से। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो H plus ion easily नहीं फर्निश होगा। If this bond is weak, H plus ion can be easily furnished. If H plus ion is easily furnished, the more acidic will be that species. Therefore ये ज़्यादा acidic होगा। According to Bronsted-Lowry concept, जब हमने इसको वाटर के साथ ट्रीट किया, we get negatively charged species. This negatively charged species, now this is the acidic order. Now let's explain a little bit more of it. वैसे भी हमने इसको 11th क्लास में डिस्कस किया है। ये हमारा HF था, ये हमारा HCl है, ये हमारा HBr है एंड दिस इज HI। यहाँ से क्या मिलता है, F नेगेटिव, यहाँ से Cl माइनस, यहाँ से Br माइनस, यहाँ से I माइनस। कहाँ से मिलता है, जब इनको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, मीन्स वाटर एक्ट्स एज अ बेस इन दिस केस। सो यहाँ से H माइनस मिलता है। दिस नेगेटिवली चार्जड स्पेशीज अकॉर्डिंग टू लविस कंसेप्ट दे आर बेसिस, ये सब बेसिस है। These are bases and these are acids. This is a base and this is acid. इनमें क्या डिफरेंस है, only this proton. This is a base, this is a acid. डिफरेंस क्या है, this proton. This is a base, this is acid. डिफरेंस क्या है, this proton. This is a base, this is acid. What is difference, this proton. Such type of acids and bases we differ only by proton. They are called conjugate acid base pairs. तो अगर ये acid है, इसकी conjugate base ये है। These are called conjugate acid base pairs. These are called conjugate acid base pairs. Conjugate acid base pairs.
दिस एन एसिड, इसकी कंजुगेट बेस ये है। दिस एन एसिड, इसकी कंजुगेट बेस ये है। अगर कोई एसिड स्ट्रांग होगा उसकी कंजुगेट बेस वीक होगी। देयरफॉर अगर आपसे कहूँगा इन सब में से कौन सी बेस सबसे ज़्यादा वीक है जिसका कंजुगेट एसिड स्ट्रांग होगा, HI इज स्ट्रांग एसिड, इसकी कंजुगेट बेस वीक होगी। देयरफॉर I नेगेटिव इज अ वीक बेस एंड F नेगेटिव इज अ स्ट्रांग बेस। छोड़ेंगे इसको। यहाँ पे अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी बॉन्ड डेसिशन एनर्जी। तो आपने अभी देखा HF स्ट्रांग बॉन्ड होता है कंपेयर टू HCl, कंपेयर टू HBr, कंपेयर टू HI। जो जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उसमें बॉन्ड डेसिशन एनर्जी ज़्यादा होगी। देयरफॉर बॉन्ड डेसिशन एनर्जी ऑर्डर इज HF इज ग्रेटर देन HCl विच इज ग्रेटर देन HBr विच इज ग्रेटर देन HI। तो अब यही से समझो जितना वीक बॉन्ड होगा उतना अनस्टेबल होगा, मीन्स दिस इज थर्मली अनस्टेबल, दिस इज थर्मली मोर स्टेबल। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी HF, HCl, HBr and HI। दिस वाज अबाउट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का जब हमने डिस्कशन किया, दिस वाज अबाउट हाइड्राइड्स, उनका एसिडिक नेचर, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी एंड उनका बॉन्ड डेसिशन एनर्जी का ऑर्डर। ये हमने हाइड्राइड्स का डिस्कस किया। लेट मी चेक द लेंथ। तो हमने यहाँ पे हाइड्राइड्स का डिस्कस किया। ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स का डिस्कस हम अलग से करेंगे बिकॉज हमें ऑक्सो एसिड्स पढ़ने हैं, ऑक्साइड्स पढ़ने हैं। और उसके बाद हमें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स भी पहले ही दिया है थोड़ा, वो भी हम अलग से डिटेल डिस्कशन करेंगे। मीन्स हम एक लेक्चर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पे बनाएंगे, एक लेक्चर ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स पे बनाएंगे, एक लेक्चर क्लोरीन और HCl की मैन्युफैक्चर प्रॉपर्टीज़ पे बनाएंगे। दीज आर द 3 लेक्चर्स विच आर रिमेनिंग ओवर हियर। इन 3 लेक्चर्स को हम अलग से 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास रहता है ग्रुप 18 एलिमेंट्स, उसमें हमें डिस्कस करने हैं कंपाउंड्स ऑफ जीनान। जीनान के कंपाउंड्स डिस्कस करने हैं, दैट विल टेक 1 लेक्चर। मीन्स अ टोटल ऑफ 4 and 5 लेक्चर्स आर देयर इन पी ब्लॉक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया ये वाला कंपाउंड। ऑक्साइड्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक और रिएक्शन है रिएक्टिविटी विद मेटल्स, reactivity, or let us discuss reaction with water, reaction with oxygen, reaction with oxygen. This is fourth. These elements they react with oxygen, they form number of oxides. इनमें से fluorine it forms only 2 types of oxides, O2F and O2F2. This is peroxide type of this is peroxide type of oxide, means it will have F, O, O and F type of structure. O2F and O2F2. Fluorine forms only these 2 types of oxides, O2F and O2F2. Other elements, chlorine, it forms oxides, large number of oxides in +1 oxidation state, +3, +5, +7, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5 like this. Iodine will also form large number of oxides. आयोडीन भी बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है। ब्रोमीन विल फॉर्म Br2O3, Br2O5, let me write these, Br2O5, Br2O, Br2O, Bro2, it will form Bro3, Bro3. These are the oxides of bromine. Iodine forms number of oxides such as I2O4, I2O5, I2O4, I2O5. This is very important. Out of these, this is important. This has application. It is used in the estimation of carbon dioxide. I2O5 is used for the estimation of, अगर आपको quantitatively estimate करना है कार्बन डाइऑक्साइड, I2O5 is used. I2O5 is used for the estimation of carbon dioxide. This is very important. Which of the following oxides of iodine is used for the estimation of carbon dioxide? It is I2O5, which is used for the not carbon monoxide. Sorry, it is used for the estimation of carbon monoxide. It is used for the estimation of carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन ऑक्साइड्स को हम बाद में डिटेल लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी तरह ये ऑक्सो एसिड्स भी बनाते हैं। अब नंबर 5th प्रॉपर्टी होती है
रिएक्शन विद मेटल्स, ये हमने एस ब्लॉक पे पढ़ा है, रिएक्शन विद मेटल्स means all halogens they react with metals, they form different types of metal halides. ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स अगर यहाँ पे होंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, they form halides of the type MX. MX means they form lithium halide, sodium halide, potassium halide, rubidium halide. They form this type of complex compounds. For example, sodium chloride, lithium chloride, potassium chloride, like this. अगर ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स होंगे दे फॉर्म हेलाइड्स ऑफ द टाइप MX2. ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स विल फॉर्म MX3. मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलाइड्स आर फॉर्म्ड. इन हेलाइड्स में अगर कभी क्वेश्चन आएगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन आयोनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड्स. बहुत अच्छी तरह हमने एस ब्लॉक में डिस्कस किया था. मीन्स इनका आयोनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा होगा, व्हाट विल बी द आयोनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल थोड़ा आपको रिपीट करूंगा, वैसे आप उस नोटबुक को चेक करके देख सकते हो. फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम आयोडाइड है. आपको बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा आयोनिक कौन है. तो आयोनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर ये हम किससे डिटरमाइन करते हैं, फजन रूल से. फजन रूल क्या कहता है, स्मॉलर कैटायन लार्ज एनायन, large anion, more covalent character. More covalent means less ionic, more covalent. तो cation यहाँ पे सेम है, anion यहाँ पे ये वाला large है, on moving top to bottom size increases. तो this will be more covalent and less ionic. This will be more ionic and less covalent. तो यहाँ से आपको इनका ऑर्डर डिटरमाइन करना है. In the next lecture, we will discuss manufacture of chlorine and manufacture of HCl. Those two topics will be covered. HCl preparation properties and chlorine preparation properties. And in the ongoing lectures, we will start oxo acids of chlorine and interhalogen compounds. Thank you for bearing me and watching me. Thanks.